अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I clear? Everybody can hear me? Can we begin? One of you please confirm. वालेकुम अस्सलाम। All right. Yes, we can hear you. Alhamdulillah. Today we are beginning the session number 20th of the Seal Nectar, Ar-Rahiqul Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm sure you guys are all fasting for Arafah. Make loads of dua. खूब सारी दुआ करें, खूब सारे तकबीरात करें, आज के जिक्र अस्कार बेहतरीन किस्म की इबादत करें. May Allah accept all our dua and आगे भी हमको दीन पे रहने की अल्लाह ताला हमें और हमारी पूरी उम्मत को इस्तिकामत दे, तौफीक दे या रब. This is a wonderful time. Push yourself maximum and पूरी अपनी कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा के बेहतरीन किस्म की इबादत करें, बेहतरीन किस्म की दुआ करें और you will feel really amazing inshallah. Yesterday we completed ke Musab as an ambassador he went to Medina for doing the dawah और काफी हद तक उन्होंने बेहतरीन किस्म का दावा किया और बहुत अच्छी उनको हुस्ना अल्हम्दुलिल्लाह I'm feeling much better now. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी. जज़ाकिल्लाह खैर. So Musab did a wonderful dawa and उसका रिजल्ट ये हुआ कि घर घर में मदीने में दीन इस्लाम कबूल किया गया और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और इस्लाम को लेकर बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी होने लगी. Shortly before the approach of the following pilgrimage season, that is the 13th year, अभी हम जो हैं 13वां साल ऑफ नबूवत में पहुंच गए हैं. Musab bin Umair returned to Makkah carrying glad tidings to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the new fertile soil of Islam in Medina. यानी बेहतरीन किस्म का एक हमारे लिए ठिकाना बन गया था क्योंकि we were looking for a place to settle down. We were looking for a place to establish a headquarter. तो वो जो एक headquarter बनाने का जो उनका एक plan था, strategy था, so वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा था, positive नजर आ रहा था कि मदीना जो है वो अब हमारा एक अच्छा headquarter बन सकता है और वहाँ से दीन का काम जो है किया जा सकता है और एक मुस्लिम इस्लामिक नेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है. तो मुसाब बिन उमर जो है वो वापस मक्का में आए खुशखबरी लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. And it's an environment rich in the prospects of general goodness and the power of immunity that city was bound to provide to the cause of Islam. यानी उस वक्त हमें पनपने के लिए या अपने आप को establish या grounded करने के लिए जो जो elements की requirement थी वो सब उधर मौजूद था. खैर थी, उसमें power था, उसमें immunity थी, लोगों के अंदर positivity थी और वो बेहतरीन geographical location के हिसाब से भी बेहतर था. हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था. The second Aqaba pledge, अभी एक दूसरा मुआहदा होने जा रहा है. Another second Aqaba pledge. ये हुआ तकरीबन 13th year of prophethood, June 622 CE में. During the pilgrimage season, over 70 converts from Medina came along with the mushrik to perform the rituals of pilgrimage in Makkah. अभी ये 13th year के जो pilgrimage season था, उम्रा और हज का जो सीजन था, उसमें ऑलमोस्ट 70 जो न्यू मुस्लिम्स हुए थे मदीना में वो पहुंचे मक्का में. The oft repeated question among them was, is it not high time for us to protect Muhammad sallallahu alaihi wasallam instead of leaving him abandoned, deserted and stumbling in the hillocks of Makkah? उनके जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि हमें जरूरी नहीं है कि हम पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी, क्योंकि हमने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है. वी हैव एक्सेप्टेड Allah as our Rabb. We have accepted Nabi sallallahu alaihi wasallam as our prophet. We have accepted Quran as our book. So हम लोगों का काम क्या बनता है कि हम लोग अपने घरों में इसको प्रैक्टिस करें या इबादत करें या कि हम जाके अपने नबी हमारे रसूल की प्रोटेक्शन करें और यानी उनको हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं. तो this is a fantastic thought that came into their minds. Shortly after their arrival, they secretly contacted the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and agreed to meet him at night during the middle of the Tashriq days. यानी ये जो उन्होंने ये फिर कांटेक्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो उधर पहुंचे और उनसे मीटिंग करना चाहते. इस दौरान आई हैड टोल्ड यू कि उनकी सीक्रेटली मीटिंग चल रही थी. तो उन्होंने ये जो आयाम अल तशरीक के दिन जो होते हैं ना 11वां 12वां एंड 13वां ऑफ जुल हज जो कि अभी इंशाल्लाह परसों आने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है रात को मिलेंगे
ये आयाम अल तशरीक में अकबा के लिए इन द हिलॉक ऑफ अल अकबा, दैट प्लेस का भी जो नाम है अल अकबा, और वो जो यानी वो वादी थी, इट वाज हिल एंड वैली, तो उधर उन्होंने प्लेस भी डिटरमाइन की और टाइम भी फिक्स किया. वन ऑफ द लीडर्स ऑफ अंसार हेल्पर्स, Ka'b bin Malik al-Ansari, gave an account of the historic meeting which changed the whole course of the struggle between Islam and paganism, and said, "We set out for pilgrimage and had planned a meeting with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. In the midst of the days of Tashriq, the night of our planned meeting with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam arrived." यानी ये जो मीटिंग थी ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और इस मीटिंग से द कोर्स ऑफ एक्शन जो आगे होने वाला था वो पूरा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया. जो अंसार थे, अंसार बेसिकली आर दी हेल्पर्स, ओके, तो वो जो अंसार थे जिसमें काब मालिक अंसारी, उन्होंने बताया कि ये मीटिंग जो थी, ये जो हमारे इस्लाम यानी मुस्लिम मोमिन और ये जो काफिरों के बीच की जो जंग है उसका जवाब था, और उनकी पूरी एक्शन को चेंज करने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी. और उन्होंने जिस तरीके से डिसाइड किया हुआ था कि वो आयाम तशरीक के दिनों के बीच में रात को मिलेंगे अकबा हिलॉक के पास, और वो दिन फाइनली आ गया, यानी वो वक्त फाइनली आ गया वो मीटिंग का. We were accompanied by Abdullah bin Amr bin Haram, one of the most notable and respected among our people. We said to him, "O Abu Jabir, you are certainly one of our most respected and one of the most noble of our nobility. We do not want you to be fuel for the fire tomorrow." Then we invited him to accept Islam and informed of the meeting we had planned with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam at Al-Aqaba. He accepted Islam and attended Al-Aqaba, and he was our chief representative. अभी उन्होंने अपने बीच में एक जो बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत नोटेबल आदमी था, यानी वो काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर था उनके क्लैन के लिए, तो उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अमर बिन हरम. उनको उन्होंने कहा कि हम आपको जो है अपना चीफ बनाते हैं, लेकिन आप जो हैं यानी दीन इस्लाम को कबूल करो, और हमारा जो इरादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीटिंग हो और हम ये सारी चीजें उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे एज ए चीफ, एज एन अमीर बन के चलो, और आप जो है हमारे ये जो मिशन या जो हमारा इरादा है उसको सही डायरेक्शन दे के आगे बढ़ाओ. तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी दीन इस्लाम कबूल किया और वो एज ए चीफ रिप्रेजेंटेटिव बन के चले. काब सेड, "That very night we slept with our people in our camps. After a third of the night had elapsed, we began to leave quietly and met at the hillock nearby." कहते जैसी आधी रात गुजर गई, वो अपने अपने कैंप्स में, टेंट्स में जो थे सो रहे थे, और फिर जैसी आधी रात गुजरी, एज पर द प्लान वो उठे और वो वादी की तरफ पहुंचे, हिल की तरफ पहुंचे. We were 73 men plus 2 women, यानी वो 73 आदमी थे और 2 औरतें थी, तो तकरीबन 75 लोग टोटल. नुसैबा बिन काब उमारा फ्रॉम द बनी माजिन बिन नजार एंड अस्मा बिन उमर मुनी फ्रॉम बनी सलमा. यानी ये जो 2 क्लैन्स हैं, बनी माजिन और बनी सलमा के क्लैन में से 2 औरतें भी थी, तो उनके नाम मेंशन हुए, नुसैबा बिन काब और अस्मा बिन अमर. We gathered in the hillocks waiting for Allah's messenger until he came in the company of his uncle Ali Abbas bin Abdul Muttalib, who was at that time still following the religion of his people. अब ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट कर रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंकल, अपने चचा अल अब्बास के साथ आए. ये जो उनके चचा थे अब्बास बिन अल अब्दुल मुतालिब, ये अभी तक इन्होंने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये अभी तक अपने ही दीन पर थे. Yet he liked to be present for the affairs of his nephew. He was first to speak. फिर भी भले उन्होंने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उनकी जो वो फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, टू प्रोटेक्ट द नेफ्यू, वो इतनी ज्यादा थी कि वो अपने रिलीजन के अगेंस्ट में जाने के लिए भी तैयार थे. तो ये उनके अंदर एक, अरब्स के अंदर एक क्वालिटी होती थी, जज्बा होता था कि वो अपने लोग, अपनी फैमिली, अपने क्लैन, अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे. Anyways, he also accompanied. "O you people of the Khazraj," the Arabs used to call the Ansar helpers, Khazraj, whether from Khazraj or Aus, "all of you know the position that Muhammad holds among us." अभी ये किसके डायलॉग है? ये उनके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के टाइटल है. वो एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि मदीना के जो लोग थे वो खजरज और औस को बिलोंग करते थे, लेकिन खजरज और औस टुगेदर यूज्ड टू बी कॉल्ड अंसार. अंसार की मानी होते हेल्पर्स. सो ही इज एड्रेसिंग देम कि ओ खजरज के लोग, अरब्स आपको अंसार बुलाते थे, भले आप खजरज से हो कि औस से हो. ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पोजीशन है. हमने उनको प्रोटेक्ट किया जितना हम कर सकते थे, हमने उनको ऑनर किया, रिस्पेक्ट किया हमारे लोगों में.
He refuses to join any party except you. कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए भी इनकार कर दिया सिवाय आप लोगों की, यानी he is ready for the people of Medina. अंसार्स को ज्वाइन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं. So if you think you can carry out what you promised while inviting him to your town, and if you can defend him against the enemies, then assume the burden that you have taken. अब उनका काम है, वो उनको आगाह कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, because it is very important. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है of protecting Muhammad sallallahu alaihi wasallam is very huge. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक तो ये कि उनको, यानी अगर आपने एक बंदे की प्रोटेक्शन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन आपने एक्सेप्ट करी, इसका मतलब है कि वो जितने मुशरिक और काफिर हैं उनके आप खुले दुश्मन हो गए, उनके लिए आपने दुश्मनी ऐलान कर ली. तो वो कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह से सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप अपने वादे पर खरे उतर रहे हो तो फिर think about all the consequences and then go for it. But if you are going to surrender him and betray him after having taken him away with you, you had better leave him now because he is respected and well defended in his own place. उन्होंने कहा अगर आपके इरादे ऐसे हैं कि आप इनको दगा दे दो या बीच में छोड़ दो या उनको फिर दुश्मनों के हवाले कर दो, तो कहते हैं आपके लिए ये बेहतर है कि आप अभी ही लौट जाओ. यानी मेक श्योर, एक बोलते ना कि एक सीधी बात एक टोक बात, अगर आपको ये कंडीशंस मंजूर है तो एक्सेप्टेड, अगर कंडीशंस मौजूद नहीं है तो जस्ट लीव इट, यानी कोई और दूसरी बात नहीं. वेरी प्रोफेशनल, वेरी क्रिस्प, वेरी अपराइट. तो काब ने रिप्लाई किया, वी हैव हर्ड योर वर्ड्स एंड नाउ ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज फॉर यू टू स्पीक and take from us any pledge that you wish regarding your Lord and yourself. It was a confident response showing complete determination, courage and deep faith to shoulder the responsibility and bear its serious consequences. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam then preached the faith and the pledge was taken. इसके बाद काब जो थे, जो अंसार के चीफ थे, उन्होंने कहा, ये सुनने के बाद, उनके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जह होकर कहा कि आप अभी बताएं कि आप हमसे क्या क्या प्लेज लेना चाहते हैं, आप जो भी अक़द, जो भी आप हमसे वादे लेना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर इट, वी आर प्रिपेयर्ड. हमने तुम्हारे चचा को भी सुन लिया व्हाट ही इज सेइंग एंड वी आर रेडी फॉर दैट रिस्पांसिबिलिटी, और हम जो भी होगा उसका नतीजा, वो नताइज भी भुगतने के लिए हम तैयार हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतमईन हो गए, उनके चचा भी मुतमईन हो गए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीच किया और फिर उनसे वादा लिया. दैट इज द सेकंड प्लेज ऑफ अक़बा. अक़बा हिल्लॉक के अंदर ये मुआदा बिटवीन अंसार्स एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्रेजेंस ऑफ हिज चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ये मुआदा हुआ था बिटवीन these two people and 75 of the representative of अंसार. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज इसी के बाद फिर जो हमारा मुस्लिम नेशन की स्टैब्लिश होना था, हेडक्वार्टर्स इन मदीना बनना था, इट ऑल स्टार्टेड इन द हिजरा पीरियड आल्सो, इंशाल्लाह विल स्टार्ट आफ्टर दिस. अब आर्टिकल्स ऑफ द प्लेज में क्या था, प्लेज के अंदर जो मुआदा था उसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखे हुए थे. Al-Imam Ahmad recorded that Jabir narrated, we said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, to what shall we pledge? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered, to listen and obey in every difficulty in ease, to spend in plenty as well as in scarcity, to enjoin good and forbid evil. In Allah's service you will fear the censure of none, to aid me when I come to you and protect me from anything you protect yourself, your spouses and children from. Subhanallah, इधर दो चार चीजें हैं जो हम लोगों के लिए बहुत अपॉइंट करने वाली है. नंबर वन जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है पर्सनली, द थिंग्स अबाउट आवर रिलीजन. एक, अब इनका तरतीब देखें, एक कोई भी बात हो रही है, आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन इस्लामिक तरीका क्या है, आप कोई भी चीज का अगर इरादा करते हैं, कितना प्रोफेशनल है कि आप एक अपने लिए आमिर को रिप्रेजेंट करें. एक तरतीब है, एक ऐसा आदमी जो लायक है लीड करने के लिए, बात करने के लिए, somebody who possess a quality. तो डेफिनेटली सिलेक्शन ऑफ आमिर, point to be noted, huh? We have an Amir who is the best among the people. Secondly, जो भी बात होती है कितना clear and simple, थोड़े words में, और इतनी effective speech होती है, सुभान अल्लाह. तीसरा, जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको लिखा जाता है. ऐसा नहीं कि मैंने बोला तुमने सुना, मुझे याद रहा, मैं कल भूल गया. इंसान आपको पता है भूलने वाला बनाया है अल्लाह ताला ने, नसिया. बट आप देखें वो लिखा जाता है, इट इज रिटन इन अ प्रोफेशनल वे. यानी आप देखें कितना खूबसूरत और कितना फुल प्रूफ फॉर्मूला है, और जो पॉइंट्स भी लिखे जाते हैं, जो भी बात की जाती है, वो कितनी टू द पॉइंट होती है. अभी मैं इसको, आई हैव जस्ट रेड इन द इंग्लिश, आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट नाउ. पहला पॉइंट जो था कि टू लिसन एंड ओबे इन एवरी डिफिकल्टी एंड ईज, यानी आप सुनोगे और आप उसको, उसकी अतात करोगे, चाहे हालात
मुश्किल हो या चाहे हालात आसान हो। ये मुद्दा हो रहा है कि अंसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला करेंगे, और वो अग्री कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि वो उनको सुनेंगे और उनकी अतात करेंगे, चाहे आसानी हो या डिफिकल्टी हो। उसके बाद वो खर्च करेंगे दिल खोल के, चाहे उनके पास ज्यादा हो या कमी हो, यानी अगर उनके पास गुंजाइश हो या ना हो वो खर्च करेंगे। ये फाइनेंस रिलेटेड है। टू एंजॉय गुड एंड फॉरबिड इविल, यानी वो नेकी के लिए जो है वो लोगों को एनकरेज करेंगे और बुराई से रोकेंगे। इनफैक्ट कुरान में एवरी टाइम आता है, आपको पता है ये बात भी। ये चीज के लिए भी उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप सिर्फ अपने अमाल, अपने दीन और अपनी इबादत और अपने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, पूरी जमात के हिसाब से। यानी आप उस एक्टिविटी जो सिन और गुनाह की तरफ लेकर जाती है, फाहिशा की तरफ लेकर जाती है, गलत कामों की तरफ लेकर जाती है, शर से, शैतानी हरकतों से भी रोकेंगे और नेकी की तरफ लोगों को पुश करेंगे। In Allah's service you will fear the censure of none. अल्लाह की खिदमत के लिए, अल्लाह के काम के लिए आपको किसी के लिए भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह को प्लीज करने के लिए हर एक्शंस करेंगे विदाउट एनी फियर ऑफ द अदर पार्टी। To aid me when I come to you and protect me from anything you would protect yourself, your spouses and your children from. आप मुझे इस तरीके से मदद करेंगे और इस तरीके से मेरी प्रोटेक्शन करेंगे जिस तरीके से आप अपने बच्चे, अपने स्पाउसेस, अपने यानी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने औलादों को जिस चीजों से खतरा होता है उस तरीके से केयरफुली आप कंटिन्यूसली मुसलसल प्रोटेक्ट करेंगे। 5 पॉइंट्स, सिंपल, क्रिस्प, टू द पॉइंट, यानी एकदम उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो गैर जरूरी नहीं है। नो बीटिंग अराउंड द बुश, एकदम प्रिसाइज। देन ये करने के बाद क्या होता है? देन पैराडाइज इज इन स्टोर फॉर यू। सुभान अल्लाह, जिसने अपने नबी की इस तरीके से प्रोटेक्शन की, इस तरीके से खिदमत की, अपने माल से, अपने जान से, ओके, वट एवर यू हैव, तो आपके लिए फिर अल्लाह की तरफ से क्या नेमत है, क्या इनामत है? जन्नत। सुभान अल्लाह। इन अनदर वर्जन रिपोर्टेड बाय इब्न इशाक़ said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began to speak, recited some Quranic verses, called people unto Allah azza wa jal, encouraged them to enter the fold of Islam, and concluded by saying, यानी आप ये देखिए, ये 3 चीज जो है, अब आप सोचें जब आप दावा करने जा रहे हैं, ये 3 चीज तो पकड़ के चलनी, बिकॉज हमने बार बार देखा कि जिस किसी भी जमात के अंदर जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या के कोई मैसेंजर भी जाता है दावा के लिए, ओके, जैसे हमने देखा कि जो जाफर रदियल्लाहु अन्हु गए थे नेगस के पास, उसके बाद मुसाब रदियल्लाहु अन्हु गए थे मदीना में। आप देखें कि इनका तरीकाकार क्या होता है, ये 2-3 चीजें ही करते हैं। क्या करते हैं? ये कुरानिक वर्सेस रिसाइट करते हैं, ये अकीदा तौहीद की तरफ उनको दावत देते हैं, और फिर चंद अहकामात ऑफ इस्लाम जो कि मेजर रूल्स हैं, ओके, उसके बारे में बताते हैं। यानी ये इधर उधर की बातें, मन घड़त स्टोरियां, अपने तरफ से कोई एडिशन, मिर्ची मसाला, कुछ नहीं। अल्लाह की बात के आगे कोई बात भी इतना वेटेज नहीं रख सकती। तो वी एज एन दाई, या हम जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं अपने आप को हम कहते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा मुताला ऑफ कुरान इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत हो कि हमें पता होनी चाहिए कि इस एंगल या इस पॉइंट पे अल्लाह ने क्या नाजिल किया है कुरान में। तो हमारी वो टाइप का मुताला होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू गिव रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान, वी शुड बी एबल टू गिव रेफरेंसेस फ्रॉम द हदीथ, ओके, हसन हदीथ, ऑफ कोर्स सही हदीथ, एंड आप जो है उस तरीके की आपकी स्टडी होनी चाहिए। और ये सब कुछ हमारा कमाल नहीं है, दिस कैन ओनली हैपन विद द मदद ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो आप अपने आप को कंटिन्यूसली उस फ्लो में रखें कि आपका रोज के हिसाब से उस तरीके से कुरान की स्टडी चल रही है और आप कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, एंड द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर बेटर यू विल बिकम। तो जितना आप इस काम को कंटिन्यूसली करते जाएंगे, देन इट विल बिकम लाइक अ बैक ऑफ योर हैंड एंड इट कैन जस्ट कम आउट बिइज़्निल्लाह वेरी स्मूथली। तो ये पॉइंट्स है हाउ टू गो फॉर दावा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही डिड। आई गिव यू माई प्लेज दैट यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम व्हाटएवर यू प्रोटेक्ट योर वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम। वही पॉइंट है, वी आर गेटिंग अनदर वर्जन, कि आप मुझे इस तरीके का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप मुझे उन सारे खतरे जो आपको लगता है कि आपके बीवियों, आपके बच्चों को हो, जिस चीजों से खतरा, उन सब से जैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं उसी सिमिलर प्रोटेक्शन आप मुझे ऑफर करेंगे। Here Al-Bara bin Marur caught him by hand and said, "Oh yes, we swear by Allah Azza wa Jal, who sent you as a prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in truth, that we will protect you from whatever we protect our women from." इस पर एक जो अंसार थे
अल बरा बिन मारूर, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और एक्सेप्ट किया, उन्होंने कसम खाई अल्लाह की कि हाँ हम आपको उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे जिनसे हमें खतरा होता है, अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हैव कॉन्फिडेंस इन अस ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम वो उनको यकीन दिला रहे हैं कि आप हम पे कॉन्फिडेंट रहो। By Allah, we are genuine fighters and quite reliable in war. It is a characteristics passed down to us from our ancestors. वो यकीन दिला रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग जो हैं बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, हम बहुत वॉर्स में हमारी महारत है, और हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो सिफत है, ये हमारे पूर्वजों से, हमारे फोर फादर से हमें मिली है। तो आप बिल्कुल यानी जरा सा भी डाउट मत रखें। अगर फाइट जंग की बात आती है, फिजिकल वॉरफेयर, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। Then Abu al-Haytham bin al-Tayhan interrupted and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, between us and the Jews there are agreements which we would then sever. If Allah grants you power and victory, should we expect that you would not leave us and join the ranks of your people, meaning the Quraysh? अब इसके बीच में एक आया, ऑफ कोर्स डाउट्स होते हैं लोगों के दिमाग में, और क्योंकि हमें पता है कि अरब्स जो हैं अपने क्लैन, अपने कुंबे, अपनी फैमिली, अपने टाइटल्स को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। तो अबुल हैथम बिन अल-तयहान ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको एक चीज बताओ कि इंशाल्लाह कल जब आप पावर में आते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे, अंसार्स को ज्वाइन करोगे, या आप अपने लोग कुरैश को आप ज्यादा तरजीह दोगे? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, ने इट वुड नेवर बी, your blood will be my blood, in life and death I will be with you and you be with me, I will fight whom you fight and I will make peace with those with whom you make peace। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा खून मेरा खून है, जिंदगी और मौत दोनों ही सूरत हाल में मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। मैं उनके साथ लड़ूंगा जो आपके दुश्मन हैं, उनके यानी जिनसे आप लड़ोगे, और मैं उनके साथ सुलह करूंगा जिनके साथ आपकी सुलह है। सो यू सी, इट इज नॉट जस्ट अ वन वे अफेयर, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो वो एक तरफा नहीं होता है। हम कुछ अग्री करेंगे, आप कुछ अग्री करेंगे, और फिर दोनों पार्टी मुतमईन होगी, एंड देन इट इज कंफर्म, और उसकी कामयाबी फिर उसी तरीके से चलती है जब हम उसको इंशाल्लाह अच्छी नीयत से फॉलो भी आगे करते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत यानी बैलेंस्ड लग रहा है, इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है। उनको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, और आप देखें एंड रिजल्ट सुभान अल्लाह क्या मिल रहा है। जब जन्नत की इस तरीके से बात आ रही है कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, जन्नत, तो ये सौदा जो है वो नुकसान वाला बिल्कुल नहीं है। Stressing the gravity of the pledge, after the conditions of allegiance were decided and the gathering had unanimously agreed to endorse it, two men from the foremost converts to Islam rose to their feet to explain the implications of the serious step they were about to take, so that they could give their pledge fully aware of the whole affair and consequently be ready for the sacrifices they were expected to make। यानी दोबारा से ये पूरे अक़द के ऊपर जोर दिया जा रहा था कि ये एक छोटी सी आई गई या आज और कल खत्म होने वाली बात नहीं है। अगर आप इस पे अग्री कर जाते हो तो आप अपनी जान और अपनी माल और अपनी आगे की पूरी जिंदगी को एंडोर्स कर रहे हो, क्योंकि ये जो है वो पूरी ज्योग्राफिकल अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको चेंज करने वाली बात है। तो ये छोटी चीज नहीं है। तो बार बार इसके ऊपर जो कुर्बानियां लगने वाली हैं, जो मेहनत और मशक्कत होने वाली है, उसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा था कि यू बेटर बी केयरफुल। यानी ऐसी खुमारी में आकर या जोश में आकर या हीट ऑफ द मोमेंट में आकर अग्री नहीं करना है। बिल्कुल अपने होशो हवास और अंदर बाहर बिल्कुल अपनी रूह, जिस्म, दिमाग सब एक जगह पे रख के फोकस करके उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाली बात थी। Ibn Ishaq said, when they gathered for the pledge, Al-Abbas bin Ubaidah bin Nadla said, do you know the significance of the pact that you are entering into with this man? You are in fact affirming that you will fight against various people. If you fear that your property will be at risk or the lives of your nobles will be in danger, then leave him now. Because if you do this after the pledge, it will be a degrading for you both in this world and the world to come. अभी सब लोग हैं, ऑफ कोर्स हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और सबका अपना अपना एक नजरिया है, बट जो वो बात कर रहे हैं इट मेक्स सेंस, इट इज नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या इलॉजिकल बात नहीं है। इसी तरीके से बिन इशाक ने कहा कि हम लोग बेशक ये मौदा के लिए यहाँ पर हम गैदर हुए हैं। इसमें अब्बास बिन उबैदा बिन नदला क्या कहते हैं कि आप ये समझ जाओ कि ये कितना गहरा और कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ये मुआहदा कर रहे हैं इस शख्स के साथ। इसके साथ आप अग्रीमेंट जब बना दे रहे हो, इसका मानी ये है कि आप बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट हो जाओगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके दुश्मन हो जाओगे। अगर आपको खौफ है कि आपकी जान या आपका माल या आपके लोगों की जिंदगी खतरे में है, तो आप अभी ही इस चीज को रिजेक्ट कर दो।
बिकॉज अगर आप एक बार इसको अग्री कर जाते हो और उसके बाद आप अगर पलटते हो तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी हमारे लिए, इस दुनिया के लिए भी और आखिरा के लिए भी. But if you think that you can carry out what are called upon to do in spite of the loss of the precious lives and property, then undertake this heavy responsibility. Okay? अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हो, बखूबी निभा सकते हो, भले आपकी जाने, भले आपके माल, भले आपके जो चहीते हैं उनकी जान भी अगर खतरे में हो जाए तो ठीक है, फिर ये हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है. और फिर ये कसम उठाते हैं कि and I swear by Allah that herein lies the good of this world and that of the next. यानी अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा सकते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरा के लिए खैर ही खैर है. They replied, we have already considered the loss of property and murder of our notables, yet we pay him allegiance. Alhamdulillah. इसे कहते हैं ना कि बस एक बार डिसाइड कर दिया तो कर दिया. कहते हैं हम राजी हैं, हमारा कत्ल हो जाए, हमारे माल चले जाए, हमारी जिंदगियां चली जाए, हमारे लव्ड वंस की जिंदगियां चले जाए, हम ये मुआहदा करके रहेंगे. But what is our reward if we observe all the items of this pact? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने कहा, paradise is in store for you. I said कि ये जो सौदा है ये घाटे का नहीं है. They said, extend your hand. Then he extended his hand and they pledged to him. तो फिर हाथ हैंडशेक हो गया, confirm हो गया, alhamdulillah. In the narration of Jabir, he said, when we started to pledge allegiance, As'ad bin Zurara took his hand and said, take it easy, O people of Yathrib. We have not covered this long distance except because we have deep belief that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah Azza wa Jal. We are already convinced that following him entails departure from the pagan Arabs, even if it were at the risk of a life. Should you enter in this course, hold fast to it, and your great reward is placed in the hand of Allah Azza wa Jal. But if you are caught in fear, I advise you to give it up just now, and that would be more excusable by Allah Azza wa Jal. फिर इस पर जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने नरेट किया कि एक और एक अंसार असाद बिन जुरारा उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि सोच लो वापस से, ओ मदीना के लोग, अभी भी आपके पास टाइम है, हम इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके आए हैं, हम पूरा यकीन रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, हम कन्विंस हैं कि ये करने के बाद हमारा जो दूसरे अरब्स हैं, जो कुफार हैं, उनके साथ परमानेंट हमारी जो कट हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, हम अपनी जिंदगी और जान को खतरे में डाल रहे हैं. पर हम जब इसमें एक बार दाखिल हो जाएंगे फिर हमें किसी भी तरीके का खौफ तारी नहीं होना चाहिए, ना तो हम अपने वादे से पीछे हटेंगे और ना हम इसको रिजेक्ट करेंगे. तो मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आप इस पे पक्के हो, 100% आपका अपने आप पे फेथ है तो ही एंटर हो जाओ. अगर आप अभी पीछे अपने कदम कर लेते हो तो अल्लाह ताला आपको फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन एक बार आप उसमें एंटर हो गए और फिर आपके कदम अगर आप पीछे लाना चाहते हो तो वो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह बारी बारी डिफरेंट नरेशंस, डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस एंड उनके जो डाउट्स थे वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. और हमारे लिए इसमें ये लेसन है कि जब हम किसी चीज का इरादा करें, नेकी वाले, मैं नेकी वाले एक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर हम किसी चीज का इरादा करें तो हम अपने आप को बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना, इमोशंस में आकर ना करें. हम अपने आप से एक बोलते ना, एक इन अ सैनिटी, एक बिल्कुल दिमागी तवाजुन जब हमारा स्टेबल हो, इमोशंस हाई पे नहीं हो, तब हम उस चीज का इरादा करें. और फिर जब हम उसका इरादा कर लें फिर हम उससे पलटना नहीं चाहिए. तो दिस इज अ लेसन फॉर अस कि मैं कोई भी नेकी का अगर इरादा करूं तो मैं उस पे इस्तेकामत, उस पे कहते हैं ना कंसिस्टेंटली रहूं. जो एक छोटी सी भी नेकी है अगर मैं वो कंसिस्टेंटली करती हूँ तो उसका अजर अल्लाह के पास ज्यादा है, ना कि ये कि कभी कुछ किया, कभी कुछ छोड़ा, कभी पकड़ा, कभी नहीं. डिसिप्लिन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट डिसिप्लिन. तो ये चीजें हम लोग को सिखाती हैं कि एक बार आपने किसी चीज का इरादा दिया, यू शुड वैल्यू योर, जिसे कहते हैं ना, यू शुड वैल्यू योर वर्ड्स. और आपकी बात में, आपके वादे में इतना वजन होना चाहिए कि खलास, वंस यू हैव डन इट, यू हैव डन इट. उस तरीके की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, उसको अपने में हमने इम्बाइब करना है. सो सिमिलरली वी सी दैट ऑल ऑफ दिस पीपल आर अगेन एंड अगेन थिंकिंग उस पे, और डिफरेंट रेट्रोस्पेक्टिव ओपिनियंस एंड सब चल रहा है. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज going to happen in the positive way. Taking the pledge. After approving of the articles of the pledge, clarification and emphasis, the process of actual pledging began by touching hands. Jabir said, after mentioning the saying of Asad bin Zurara, they said, "O Asad, stretch your hands out for us. For by Allah, we will never breach or cheat this pledge." यानी हम इसके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हम cheat नहीं करेंगे, हम इस पे खरे उतरेंगे. It was then that Asad realized the surety in this cause, and he, along with Musab bin Umair, was the primary person inviting to this pledge and the first to take it. So Asad जो थे वो
और मुसाब बिन उमैर जो थे वो फर्स्ट प्राइमरी लोग थे जिन्होंने इसको अपना हैंड एक्सटेंड करके इसको पक्का किया. Ibn Ashik said Banu an-Najjar claimed that Abu Umama Asad bin Zurara was the first person to put out his hand. Abu Umama Asad bin Zurara वो पहले बंदे थे जिन्होंने हाथ एक्सटेंड किया. After that everyone else began to give the pledge. Jabir said, so man by man we stood before him taking the pledge so that by that we would be granted paradise. यानी इनको पता है क्या सौदा है और उसका आगे अजर क्या है. सुभान अल्लाह. With regards to the two women, the pledge was taken orally, for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never shook hands with an unrelated woman. आदमियों के साथ हैंडशेक हुआ. जो दो औरतें थी ना उनके साथ सिर्फ वर्बल प्लेज लिया गया, ओरली. उनके हाथ नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच किए, बिकॉज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत को टच भी नहीं किया. सुभान अल्लाह. 12 representatives. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then asked the group to appoint 12 people to represent their people and to be responsible regarding the articles of the pledge. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हर चीज की तरतीब है, हर चीज का एक सलीका और तरीका है इस्लाम में. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ग्रुप बनाया, 12 लोगों का ग्रुप बनाया. 12 लोग जो हैं वो 12 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेसिकली. तो वो जो हैं अपने अपने ग्रुप्स में जाकर जो ये प्लेज की जो पॉइंट्स हैं ओके वो अपने लोगों को बताएंगे. ये 12 आदमी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने अपने कुंबे में जाकर अपने अपने ग्रुप में जाकर इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे और सब लोगों को दे विल मेक देम अंडरस्टैंड. अभी इसका अब तरीकाकार का इंपॉर्टेंस देखें. यानी ऐसा नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स या जो हेड या जो चीफ थे उन्होंने आपस में बात कर ली और जो नीचे बेचारे लोग हैं उनको उस चीज की खबर ही नहीं कि भाई क्या हुआ है. ये तरीकाकार क्या है कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, सब चीज ट्रांसपेरेंट होगी. एवरीबडी विल कम टू नो कि क्या हुआ है, क्या पॉइंट्स है, क्या नहीं. लाइक द अदर डे आई वाज हैविंग अ डिस्कशन ऑन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. आई मीन दिस इज समथिंग वेरी सिली बट आई डोंट थिंक सो इट इज सिली ऑल्सो. बट हम लोगों को अवेयर ही नहीं है. आप सब माशाल्लाह जिनकी शादी हो चुकी है, हैव यू एवर नोन कि आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस क्या लिखे हैं? एनी वन ऑफ यू, डू यू नो इट? हमें किसी को पता भी है कि क्लॉजेस के अंदर होता क्या है, होना क्या चाहिए? None of us know it. You know how important is that? Don't you think so? We are vouching our entire life. Okay, हमारा ये मुद्दा ही हो रहा है ना. लेकिन do you know what is written in the contract? कभी आपको किसी बड़े ने किसी ने बताया कि आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाह नामे में होता क्या है? What are the points that should be there? What are the points that should be eliminated? None of us know it. None of us have ever thought about it. None of our elders have ever thought about it. उन्होंने आंख बंद करके साइन कर दिया, कुबूल है, but we don't know what is in the contract. होना क्या चाहिए? ये दो लोगों की पूरी जिंदगी को जोड़ने वाली बात हो रही, दो खानदानों को इनफैक्ट. But have we ever thought about it? Imagine it is such an important contract, but we have never thought about it. और यहाँ पर ये जो प्लेज हो रही है, ये रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, ये अपने अपने ग्रुप्स में जाकर हर एक बंदे को जो उनके ग्रुप के अंदर होंगे उनको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. मेक देम अंडरस्टैंड ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वी आर टोटली लॉस्ट. Inshallah, we'll discuss about this later. I know I'm going off the topic, but I'm just giving you a sneak peek कि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. Like for example, now that we are in Kuwait, we have house contracts. हम लोग के जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे जो मियाँ हैं हम उनको ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे साइन इट ऑन देयर ओन. ट्रांसलेशन का भी हमें खबर नहीं होती है. बट ओरिजिनली देखा जाए तो हर एक चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन नाउ अगेन, बट नाउ दैट आई एम सीइंग दैट सीरा का तरीका कैसा था कि ये लोग किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखते थे, ये लोग किस तरीके से एक दूसरे को अवेयर करते थे. ये तरीका होना चाहिए. दिस इज द वे इट हाउ इट शुड बी डन. एनी कॉन्ट्रैक्ट वेर इन यू आर इन्वॉल्व, यू शुड बी अवेयर. हमारा रिलीजन जो है वो बहुत पढ़े लिखे वाली अप्रोच है, जहालियत वाली अप्रोच नहीं है. आप देखें कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, साइन हो रहे हैं, हाथ हैंडशेक हो रहा है और उसके बाद और अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों में. सो इट इज नॉट एम्बिग्यूटी, उसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट्स नहीं है. सब चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट है. सब लोगों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसपेरेंसी है. सबको बताया जा रहा है, सबको दिखाया जा रहा है, सबको सुनाया जा रहा है. कोई भी अंडर द टेबल डील नहीं है. तो गबन और कहते हैं ना डाउट्स का कोई गुंजाइश नहीं है. सुभान अल्लाह. So, ये 12 रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया गया और इनको बताया गया कि भाई अपने अपने लोगों को बताओ. रिप्रेजेंटेटिव्स वर 9 फ्रॉम अल खजरज. खजरज में से 9 रिप्रेजेंटेटिव थे. असाद बिन जुरा बिन अद्स, साद बिन अरबी बिन अमर, अब्दुल्ला बिन रवाहा बिन सलाबा, रफी बिन मालिक बिन अल अजलान, अलबरा बिन मरूर बिन सखर, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हरम, उबैदा बिन असमिद बिन कैस, साद बिन उबादा बिन दुलैम एंड अल मुंजिर बिन अमर बिन खुनैस. 3 others were from al-Aus. यानी 9 खजरज से और 3 औस से. औस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसैद बिन हुदैर बिन समक, सआद बिन खातिमा बिन अल हारिथ एंड रिफा बिन अब्दुल मुंजिर बिन जुबैर.
After their appointment, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took another oath from these 12 representatives that they would hold the position of answerability. Subhanallah. ये major ये जो अक़द हो गया, जो इनके बीच में प्लेजिंग हो गई, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 12 रिप्रेजेंटेटिव थे, 9 फ्रॉम खजरज और 3 फ्रॉम आउस, उनसे फिर एक ओथ ली. क्या ओथ ली? कि आप जो एक पोजीशन पे हो, इफ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो आप जवाबदारी हो, यू आर आंसरेबल फॉर दोज थिंग्स. यानी अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई मसले मसाइल होते हैं, देन हु इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? दीज रिप्रेजेंटेटिव्स. सुब्हानअल्लाह. लुक एट द कंस्ट्रक्शन. देखें आप स्ट्रक्चर कैसे बनता है कम्युनिटी का. You are responsible over your people in matters among them, a responsibility like that of the disciples of Isa bin Maryam, and I am the one responsible over my people, meaning the Muslims. यानी अभी आप वो जो हायरार्की बनती है ना, जो स्ट्रक्चर बनता है, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर ऑफ कोर्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल, देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नीचे ये 12 रिप्रेजेंटेटिव, और ये 12 रिप्रेजेंटेटिव के नीचे इनके डिफरेंट कुंबे. कहते हैं दिस इज हाउ द आंसरेबिलिटी चलेगी. यानी आप जो हैं वो अपने ग्रुप के रिस्पॉन्सिबल हो और आप सबका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं. सिंपल. सो नाउ वी नो कि कौन किसके पास जा रहा है. कोई कंफ्यूजन नहीं. स्ट्रक्चर इज गेटिंग बिल्ड. A devil exposes the meeting. After the people had finished the pledge and the covenant was complete, one of the devils exposed them at the very last moment, hoping to get the Quraysh to gather and witness this congregation firsthand at the location. The devil stood on the highest ground shouting so that everyone could hear, "O people of the dwellings, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his youth have conspired for war against you." Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, "This is Azab, the jinn of Al-Aqaba. O enemy of Allah, we are leaving you now." Then he ordered them to go to their camps. अब इतनी खूबसूरत मीटिंग, इतना बेहतरीन निज़ाम और सब कुछ माशाल्लाह पॉजिटिव जा रहा है. बट हाउ कैन एनीथिंग बी सो गुड विदाउट एन एलिमेंट ऑफ इवल इन इट? कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो होना ही है. गड़बड़ हो गई. गड़बड़. अक़बा वैली के जो एक जिन था जिसका नाम अज़ब बताया जाता है, वो उसने शैतानी की. वो खड़ा हो गया एक हिल पे और वहां से उसने जाकर चीख के दूसरे जो कुरैश थे उनको बताया कि देखो यहाँ के लोग, यहाँ के वादी के लोग, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो यंग यूथ हैं वो आपके अगेंस्ट वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी फिर अपने वो जो अंसार थे उन लोगों को कहा कि आप लोग, उनको ऑर्डर दिया कि आप अपने अपने कैंप्स में पहुंच जाओ. The Ansar prepared to strike the Quraysh. On hearing the voice of this devil, Al-Abbas bin Ubaidah bin Nadla said, "By Allah, who has sent you in truth, we are powerful enough to put the people of Mina, the Qurayshites, to our swords tomorrow, if you desire." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "We have not been commanded to follow that course. Now go back to your camps." They went back to sleep till morning. अभी इन्हीं के ग्रुप में जो अंसार में उबैदा बिन नदला थे, उन्होंने कहा कि आप अगर हमको इजाजत दो या आप हमको हुक्म करो तो हम तैयार हैं अपनी तरफ. बिकॉज दे वर वेरी गुड इन वॉरफेयर, वो प्रिपेयर्ड थे. उन्होंने कहा आप अगर हमको हुक्म करो तो हम इनको जो कुरैश हैं, दुश्मनी कुरैश जो हैं, उनको हम मार गिरा सकते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी तक हमको इस चीज का हुक्म नहीं आया. बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिड एनीथिंग विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो उन्होंने कहा अभी हमको इस चीज का ऑर्डर नहीं आया है, आप लोग जाके अपने कैंप्स में सो जाओ. एंड दे वर ऑर्डर टू स्लीप. सुबह तक आराम से रिलैक्स करो. अब इसमें हम लोगों के लिए क्या लेसन है? ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द जंगी हालत लाइक दैट, बट आई एम सेइंग अपनी अपनी लाइफ पे आप एक जायजा डालें अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल कंडीशन के ऊपर, कि कल को अगर हमको हमारी फैमिली को, हमारे दीन को, हमारी अजमत को अगर प्रोटेक्ट करना है, आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हम में इतनी ताकत कुव्वत है कि हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने दीन, अपने लव्ड वंस, अपने इज्जत अजमत सबको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? या हम उन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह हिलने में तकलीफ होती हो? थिंक अबाउट इट. Always be prepared. If I'm saying I'm a believer, I should be prepared for everything in my life. दीन की खिदमत करनी है, जो भी करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ. इसलिए अपने आप को इतना एक्टिव, इतना डिसिप्लिन, इतना फिजिकली, मेंटली फिट करें, स्पिरिचुअली इतना फिट करें कि आप यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. एंड दिस इज नॉट जस्ट यानी कि एक फैक्टर के लिए, बट आपको अगर एक अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है, इबादत आपको अच्छे से करनी है, खिदमत आपको अच्छे से करनी है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपकी फिजिकल कंडीशन जो है ना वो फिट रहे. वर्क ऑन इट. और अगर आपने नियत अच्छी रख के अगर आपने करी तो आपको अजर भी मिलता है इसमें. The Quraysh arrived to argue with the leaders of Yathrib.
No sooner did the Quraysh hear of this treaty that a tumultuous uproar began to spread in all directions. They realized quite fully that an alliance of this sort was bound to produce far-reaching consequences of direct impact on their lives and wealth. कुरैश को आइडिया तो लग गया था, वो अजब जिन जो था उसने बता दिया था, तो कुरैश was hearing कि हाँ ये अभी हर डायरेक्शन में फैल रहा है, और बहुत ये जब मुआदा हो गया तो देवर श्योर कि अब हमारी जान और माल के लाले होने वाले हैं. The following day, a large delegation comprising the leaders and arch criminals of Makkah set out for the camp of the Madinis to protest severely against the treaty. अब जो इनके जो मेन दुश्मन थे, दुश्मन इस्लाम जो थे मक्का के, वो पहुंचे अपना ग्रुप बनाकर, वो जहां पर मदीनियस का जो कैंप्स था, उनके जो कैंप्स थे टेंट के पास, ये लोग पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए कि आपने कौन सी ट्रीटी साइन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. They addressed the Madinis, O people of Khazraj, it has been conveyed to us that you have come here to conclude a treaty with this man Muhammad sallallahu alaihi wasallam and evacuate him out of Makkah. By Allah, we would hate fighting to break out between us. देखिए मक्कन भी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि खजरज और आउस जो है ये मिलिट्री वाले हैं, इनके पास ताकत भी है, इनमें जज्बा भी है, इनमें नंबर वॉल्यूम भी है, तो ये लोग सीधा आके पंगा नहीं ले रहे हैं. या कि कह रहे हैं कि हमको पता चला है कि आपने ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आप उनको मक्का से इवैक्यूएट लेकर जाने वाले हो, तो हम ये नहीं चाहते कि हम आपके साथ झगड़ा करें, कोई फसाद करें. The Madinese politicians, having known nothing about the secret pledge, began to swear by Allah and answered in good faith that there was no truth in the report. Abdullah bin Ubay ibn Salul, a Madinese politician, refuted their allegation, denouncing them as null and void, claiming that his people would never initiate anything unless he gave them clear orders. अब ये था कि ये जो मदीनियंस का जो ग्रुप आया था, उसके अंदर ये सिर्फ चंद लोग थे, 75 लोग थे जो जिनका ये प्लान था, राइट. लेकिन जो ओवरऑल टेंट ऑफ मदीना था उसमें मुशरिक भी थे मदीना के, यानी जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, नॉन मुस्लिम्स भी थे. तो उनके बीच में से एक अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल उठे और उन्होंने कहा कि ये जो आपने बातें सुनी है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. कहते हैं मदीना और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और ये जो भी आप बात कर रहे हैं ये झूठी है. देखा जाए तो आप देखें, बिकॉज दिस वाज अ सीक्रेट प्लान, राइट. सो ही इज कंफर्मिंग, उसे पता नहीं था, वो कहता है ऐसा कुछ भी बात नहीं है और हम लोगों ने ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया. The Madinese Muslims, however, remained silent, neither negating nor confirming. The Quraysh leaders seemed to be convinced by the arguments presented by the politicians and went back home frustrated. Subhanallah. अब इधर points to be noted. जब ये मुशरिक कंफर्म कर रहा है अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल, एंड ही इज राइट, यानी उनको तो खबर ही नहीं थी, तो वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये मनगढ़ंत बातें, झूठ फरेब है, इसमें कुछ भी नहीं सच्चाई है, हमने कुछ भी नहीं साइन किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. अब ये सुनकर जो मदीने मुस्लिम्स जो थे, जो वो 72 लोग थे, वो लोग खामोश रहे, उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया, ना तो उन्होंने कंफर्म किया ना तो उन्होंने रिजेक्ट किया. हिकमत, सी द विजडम, वो खामोश रहे क्योंकि ये आपस में मुशरिक की बात चल रही है, करने दो, हम अपना काम जो है हम तो कर बैठे हैं, तो वो खामोश थे. अब ये जो कुरैशी लीडर्स थे वो लोग भी खुश हो गए, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो बिना कोई झगड़ा, बिना किसी फसाद और जंग के वो वापस लौट गए. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि देखिए हम लोग कई बार ना, लाइक आई डोंट नो, देयर आर मेनी सिचुएशंस इन लाइफ, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा जिनको बात करने की आदत होती है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फितना है जबान का, आपको पता है अच्छी तरह से, कि कई बार कुछ बातें नहीं करनी होती है किसी के सामने, और जिनको बहुत ज्यादा बात करने की आदत है वो अक्सर इस तरीके के सीक्रेट्स या ऐसी कुछ बात कर जाते हैं कि अनइंटेंशनली वो फितना क्रिएट कर देते हैं, अनइंटेंशनली रिश्तों को खराब कर देते हैं. तो इट इज ऑलवेज अ प्रैक्टिस, चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई भी जगह हो, जहां आपका मुंह खुलने जा रहा हो, जस्ट गिव इट अ थॉट, ये बात करने से क्या इफेक्ट हो सकता है. टेक अ पॉज, थोड़ा सा पॉज लो, सोचो, फ्रेम करो अपने सेंटेंसेस को और कम बोलो. Believe me, आपकी लाइफ की 75% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड जस्ट विद दिस एक्ट. सोचो समझो, मैं ये बात करूंगी तो ये इससे कुछ फायदा होगा, खैर होगा, मेरी दुनिया और आखिरत में इसमें फायदा है, किसी के लिए भलाई है, बेहतरी है, तो ही बोलो, अगर नहीं है तो खामोश रहो. The Quraysh became convinced of the previous reports. However, they were not fully satisfied with the words they heard. They began to scrutinize the smallest details and trace the minutest news till it was established beyond a shadow of doubt that the pact did take place. But that was after the Madinese pilgrims had left Makkah. अब कुरैश जो है वो
अज़ाब जिन की बात, और इनको अच्छी तरह से पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है कि ही डजंट स्टॉप हिमसेल्फ फॉर एनीथिंग गुड, और जिस तरीके से उनकी प्रोमिनेंस फैल रही थी, तो कुरैश जो थे वो भी बेवकूफ नहीं थे, वो भी खामोश नहीं बैठे, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। उन्होंने फिर इंक्वायरी की, उन्होंने अपने अपने स्पाइस को और इधर उधर उन लोगों ने दौड़ाया और एक एक डिटेल उन्होंने निकलवाई, एंड उसके बाद उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ पैक्ट साइन जरूर हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय देन जो मदीनन्स थे वो निकल गए थे, वो निकल चुके थे। In a fit of rage, they pursued the pilgrims. They did not succeed in catching any of them except Saad bin Ubaidah. अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे पिलग्रिम्स जो थे वो अपनी अपनी सेफ हेवन में पहुंच गए थे, लेकिन एक साद बिन उबैदा जो थे वो नहीं पहुंचे थे अभी तक. They subjected him to unspeakable torture, but he was later rescued by Al-Mutim bin Adi and Haris bin Harb bin Umayya, with whom he had trade relationships. अब ये साद बिन उबैदा को उन लोगों ने टॉर्चर किया, बताओ क्या था क्या नहीं था, and reveal everything. अल्हम्दुलिल्लाह he didn't reveal anything, और उनको रेस्क्यू किया गया जो दो मक्कन्स ट्रेडर्स थे, अलमुतीम बिन आदी और हारिस बिन हर बिन उमैया, जिनके साथ उनके बिजनेस रिलेशनशिप थे, तो वो लोगों ने इंटरवीन करके इनको छुड़ा दिया. That is the story of second Aqaba pledge, later known as the Great Aqaba pledge. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट प्लेज था, बहुत बड़ा अक़द था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज की है. Affected in an atmosphere of love, allegiance and mutual support between Madinese believers and weak Meccan Muslims. यानी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के जो लोग थे, जो अंसार थे, वो इतने स्ट्रांग थे, इतने डिटरमाइंड थे, इतने सच्चे और इतने सपोर्टिव थे, तो ये इनके और जो बेचारे weak Meccan Muslims थे उनके बीच का मुआहदा था. This new spirit of affection and cooperation could not be attributed to a fleeting desire. On the contrary, it derived completely from an already deeply established approach, belief in Allah Azza wa Jal, His Messenger and in His books. यानी ये एक इतना प्यारा जो रिश्ता बना, डेवलप हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि मदीना के जो अंसार थे उनके अंदर जो अल्लाह के लिए यकीन था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका भरोसा था, और जो कलाम अल्लाह कुरान के ऊपर उनका जो भरोसा था, उस वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हुआ. इट वाज अ बिलीफ सो डीपली रूटेड इन द सोल दैट इट मैनेज्ड टू स्टैंड इम्यून टू ऑल द पावर्स ऑफ इनजस्टिस एंड एग्रेशन एंड कुड स्पॉन मिरेकल्स इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन एंड आइडियोलॉजिकल परसूट. यानी ये यकीन और ये भरोसा और ये खूबसूरत इरादा जो था, और इनके ज्वाइन होने से, कहते हैं ना जमा में बरकत है, कहते इन लोगों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट या ये एक अक़द जो है, ये पूरे जो जालिम और जुल्म करने वाले और इविल प्रैक्टिसेस वाले जो लोग थे उन लोगों को उधेड़ने के लिए काफी था. इट वाज लाइक अ मिरेकल. अल्हम्दुलिल्लाह, दिस सॉर्ट ऑफ बिलीफ वाज द रियल इंस्ट्रूमेंट दैट enabled Muslims to record unprecedented breakthroughs in the annals of history. We are also sure that the future will always remain wanting with regard to the great achievements carried out by those great men. यानी हमें पता है इसके बाद, बिकॉज वी हैड डन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का हमने किया है, तो वी नो एग्जैक्टली व्हाट ऑल हैपेंड इन मदीना, कैसे इस्लामिक स्टेट हुआ, कैसे फतेह मिली, कैसे हमारा ग्रुप माशाल्लाह फैलता गया पॉजिटिवली. तो उसको कभी भी सक्सेस पाने के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज डेफिनेटली यकीन, द फेथ, आपका ईमान. ईमान की ताकत जो है वो बहुत आगे तक चलती है, सुभान अल्लाह. और फिर उसके बाद लोगों के बीच में इत्तेफाक. इफ यू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल, द टीम, ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है, यू नीड अ टीम, अ राइट काइंड ऑफ टीम. और फिर जब आपके इरादे पक्के हों, आपका यकीन, आपका ईमान पीक पे हो, आप रेडी हो अपना सब कुछ लगाने के लिए, that is the formula to success. It is so beautifully explained here. यानी आप देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इससे हमें द सक्सेस का फॉर्मूला मिलता है, और यही फॉर्मूला हमें अपनी जिंदगियों में लगाना है इंशाल्लाह ताला. एंड मे अल्लाह मेक अस सक्सेसफुल इन दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर, एंड मे वी टर्न आउट टू बी द बेस्ट मुस्लिम्स ऑफ आवर टाइम. एंड हमारा जो है खात्मा जो है वो दीन इस्लाम पर हो, और हम मुकर्रबों में शामिल हो, और हमारी फैमिलीज जो हैं वो भी दीन पर हो, शामिल हो हमारे साथ इसी काम में, और हमारी जनरेशंस को अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे या रब. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एनी क्वेश्चंस? कुछ है आप लोगों के? ओपन फोरम, यू कैन डिस्कस. आई नो सब रोजे की हालत में हैं, काफी कुछ करना है काम. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी दैट वी वर एबल टू कंडक्ट द सेशन टुडे, क्योंकि मुझे ये अक़बा प्लेज का सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा. यस फरहीन, is it must to distribute udhiya meat in 3 portions? I'm putting the question. हेलो, Yeah, I got your this thing. मैं बोल रही हूँ ऐसे ही बता दो ना, लॉन्ग पोस्ट रहता है.
Actually, without giving the proper references, I just don't like to give my words. That is the thing. That is the recommended thing ना. We have to do what is recommended, of course. आपको पता है the main thing of all this जो हम लोग नेकियां करते हैं, ज़कात करते हैं या ये कुर्बानी भी जो करते हैं, what is the main purpose? The main purpose of doing all this नेकियां is to provide to those who are needy. तो अगर हमारे ही खाने पीने की बात होती तो हम लोग तो सुभान अल्लाह वैसे भी खाते रहते हैं नहीं. But when Allah is, when it is a recommended neki, if it is a mustahab thing, so what is the main idea is to do khair, do things for people who are less, जिसे हम कहते हैं ना कि जिनके पास जो poverty वाले हैं, तो it is important for us to be a party in the khair. तो वो उन लोगों को provide करने के लिए होता है. तो definitely the 3 portion has to be followed. एक अपने लिए रखें, एक अपने लव्ड वंस या फैमिली के अंदर वो करें, डिस्ट्रीब्यूट करके उनको खिलाएं, और एक गरीबों को दें. जितना खैर करेंगे उतना बेहतर है ना हमारे लिए. There is also one of the hadith अज़वाज मुताहरात की थी, I think हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का था कि she had kept the पाए उन्होंने रख दिए थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि क्या आपको जन्नत में वैसा वाला एनिमल चाहिए जो विदाउट पैर हो. So you can see like how these people were giving everything. ये तो हमारे लिए आसानी अल्लाह ताला ने कहते हैं ना किए कि भाई चलो एक पोर्शन अपने लिए, अपने लो लव्ड वंस के लिए ले लो. वरना देखा जाए तो जितना हम ज्यादा खैर करें उतना बेहतर है हमारे लिए ना. I'm putting the whole entire thing in the group. Please इसको पढ़ लेना and maybe we are able to implement it nicely. अल्लाह ताला बस इसको हमको अंजाम देने वाला बनाए. Any other question, guys? कौन है Sunday पुअर की कैटेगरी? पुअर की कैटेगरी वही है ना, जैसे कि अभी अपने यहाँ पर मेड्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, जो गरीब कैटेगरी. आई नो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ढूंढना, लेकिन स्टिल यू कैन फाइंड इट. बहुत सारे मिस्किन लोग हैं जो रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए. तो आप बांटते जाए, इंशाल्लाह दुआ करो, इस्तिखारा करो, यू विल गेट द राइट पीपल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. यस शैमा. I want to add here, I heard in a lecture अभी 2-4 रोज पहले कि it's not compulsory कि 3 portions करें और वो गरीबों में अलग से, मतलब you go on streets and find out. अगर आपके रिश्तेदार भी जो गरीब है तो उनको मतलब बल्कि आपको कर सकते हैं. You are right. बल्कि आपको उसमें डबल सवाब मिलता है, एक तो सिला रहमी का भी और इसका भी. जी, तो वो ऐसा जरूरी नहीं you go on the street to find out गरीब. तो वो जो अपने ये भी है, रिश्तेदार भी है, they are not well off, तो उनको you can treat them and give them their share. Yes, absolutely. रिश्तेदारों का हमेशा पहला होता है, और आप हमेशा याद रखें कि रिश्तेदारों के साथ अगर आप करते हैं तो आपको डबल ट्रिपल अजर मिलता है. अगर वो रिश्तेदार आपका नेबर है, अगर वो रिश्तेदार आपका, यानी फिर आप सोचें, एक you are giving it as a Muslim, the right of a Muslim, the right of a neighbor, the right of a relative. So उनकी तो तरजीह definitely है. तो आप you don't have to go street. If you have people among your relatives, priority उनकी है. और जो मांगते, मतलब जो वो जाहिर नहीं करते, but you know that they are like they are not well off. तो दो मिस्कीन है तो वो जाहिर नहीं करते या मांगते नहीं है, तो उनको देना बेहतर है. डेफिनेटली. जज़ाकल्लाह खैर. डेफिनेटली अपने विद इन द फर्स्ट सर्कल में देखें. फर्स्ट अपने फर्स्ट सर्कल में, रिलेटिव्स, नेबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड देन गो आउटसाइड. क्योंकि जब आप विद इन द सर्कल करके उसको डेवलप करते हैं तो आपको डबल ट्रिपल अजर है. राइट. तो इंशाल्लाह उस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करें. एंड स्पेशली जैसे सिस्टर ने बताया ना, द वंस हु डोंट आस्क, दे आर द मोस्ट डिजर्विंग काइंड. यानी वो अपनी इज्जत को पामाल नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप रियलाइज करते हैं, आपको पता है, तो उनको तरजीह दें, उनको प्रायोरिटी दें. ठीक है ना. By the way, I have already put it in the group. लेकिन हम लोगों को मसला समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह. May Allah put barakah in everything and may Allah accept all these good efforts from us. ठीक है ना. And this can be given to non-Muslims as well. This can be given to non, but आपने नियत यही करनी है कि you are trying to
प्रीच दावा। मेरी कोशिश हमेशा क्या होती पता है, लाइक अगर आप ज़कात भी अगर देना चाह रहे हो तो आपका इंटेंशन विल मैटर अ लॉट हियर, बिकॉज द होल आइडिया इज व्हाट दैट वी हैव टू गिव इट टू आवर पीपल। लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा है गरीब नॉन मुस्लिम इमीडिएट नेबर है या आपके जानने वाले हैं, तो आप उनके साथ वो मामला करें कि आप उनको दावा के लिए या इस्लाम की तरफ माइल करें, तो डेफिनेटली यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन एज वेल। ठीक है जी, सही बात। चलिए जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन संडे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेक दुआ फॉर एवरीवन, you guys.